MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال اللہ کے راستے میں لگایا انہوں نے، 950 سال 50 سال اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے گزارا۔ ان کو مار کھانی پڑی، لوگوں کی اذیتیں اور ظلم سہنا پڑا، لوگوں کے تانے سننے پڑے، لیکن اللہ کے راستے میں وہ لگے رہے 950 سال۔ وہ بھی کہیں گے یا ربی نفسی، وہ ہولناکی ہوگی، وہ ایسا خوفناک ماحول ہوگا کہ وہ نوح علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی، اے میرے رب میرا کیا آج حال ہوگا۔ محترم حاضرین جمعہ، اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن چند مخصوص لوگوں کو اللہ رب العالمین مخصوص لوگوں کے بارے میں شفاعت اور سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں کے متعلق اجازت دے گا صرف انہی کے لیے سفارش کل قیامت کے دن انبیاء، اسی طریقے سے صلحاء، اولیاء اور اللہ کے نیک بندے ان کے حق میں سفارش اور شفاعت کریں گے۔ اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کل قیامت کے دن جب ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگیں گے، بیٹے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے، کوئی دوست کسی دوست کو دیکھنا نہیں چاہے گا، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد کے لیے، کسی کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں وہ مجھ سے کسی نیکی کا سوال نہ کر لے، کہیں وہ مجھ سے کوئی نیکی مانگ نہ لے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر، ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں کسی دنیاوی چیز کا بدلہ میرا باپ مجھ سے نہ مانگ لے نیکیوں کی صورت میں۔ یہ حالت ہوگی وہاں سارے انسانوں کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح کے اندر آتا ہے اس وقت جب نفسی کا عالم ہوگا، کوئی نبی اللہ رب العالمین سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں کر پائیں گے، اس وقت میرے نبی کے پاس سارے لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول سے شکایت کریں گے، اے اللہ کے رسول آپ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، دیکھ رہے ہیں انسانیت کی کیا حال ہو رہی ہے میدان محشر کے اندر، اللہ سے کم اس کی تخفیف کے لیے تو سوال کریں، اللہ سے کچھ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام محمود میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، رو رو کر اپنے رب سے اپنی امت کے لیے، انسانیت کے لیے وہاں دعا کریں گے۔ اس وقت کافی لمبا سجدہ کریں گے، جب تک اللہ چاہے گا تب تک میرے نبی سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے التجا کریں گے۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہے گا ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ سجدے سے۔ اب سجدے سے اٹھو، سل تعطا، مانگو دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے سفارش یہ کریں گے، اے اللہ جو یہ حالت ہے، یہ جو حالت ہے ابن آدم کی، آدم کے اولاد کی، اے اللہ تو ان حالت سے ہم کو ہماری حفاظت فرما۔ اس وقت سوال و جواب کی گھڑی شروع ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے بارے میں سفارش کریں گے، نیک لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے، موحدین کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے بتلایا کہ وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب اور اپنے آپ کو وہ انسان بڑا باسعادت سمجھے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کریں گے۔ ہم نے بتلایا کہ کوئی بھی انسان اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، اپنی نیکیوں اور ثواب کی بنیاد پر اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ،
اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ اتنی آسان بھی جنت نہیں ہے کہ انسان 2-4 وقت کی نماز پڑھ کے 2-4 سال اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کر لے۔ اتنی آسان جنت نہیں ہے کہ انسان صرف فرض روزہ رکھ کر اللہ کی جنت کو حاصل کر سکے۔ اتنی آسان بھی جنت نہیں ہے۔ اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں ہے کہ کوئی انسان چند روپیے خرچ کر کے اللہ کی جنت کو خرید سکتا نہیں۔ اللہ کی جنت اتنی آسان اور سستی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری نیکیوں کی اتنی ویلو نہیں ہے، ہماری نیکیاں اتنی بیش قیمت اور مہنگی نہیں ہے کہ جنت کی دولت اس کے سامنے ہیچ ہو جائے، کمتر ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جنت یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک مومن آدمی کا ہمیشہ کے لیے کل قیامت کے دن وہی ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے، جنت جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت جیسی بیش قیمت اور مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہماری یہ نیکیاں بڑی کمتر ہیں، ہماری یہ نیکیاں بڑی چھوٹی ہیں۔ ہم اپنی نیکیوں سے جنت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا سہارا اللہ کی ذات سے، اللہ رب العالمین کے سامنے جب تک ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ہمارے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری نیکیاں تو پہلے ہی سے کم ہیں، اور جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیاں بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بہت ساری کمیاں ہماری ہوتی ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں بھی ریاکاری، دکھلاوا، نمود، پوری زکوٰۃ نہیں، صحیح طور پر زکوٰۃ نہیں۔ گویا کہ جو نیکیاں ہم کرتے بھی ہیں وہ نیکیاں بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگوں کی نیکیاں جو کتاب و سنت کے مطابق اور موافق نہیں ہوگی، تو یہ گویا کہ یہ نیکیاں ہی نہیں ہے۔ تو ان نیکیوں کی بدولت جنت ہم کیسے حاصل کریں گے؟ کیسے ہم اللہ کو راضی کریں گے؟ کیسے ہم اللہ کو خوش کریں گے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کل قیامت کے دن ہمارا کوئی سفارشی ہو، ہمارے حق میں اللہ سے کوئی سفارش کرے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہنم سے بچنے کی اور جنت میں داخل ہونے کی اللہ سے سفارش کریں، اللہ کے سامنے شفاعت کریں، ہمارے حق میں میرے نبی گواہی دے، تو ہم کو چاہیے کہ وہ اعمال ہم انجام دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں شفاعت اور سفارش کریں گے کل قیامت کے دن؟ 2 سبب ہم نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا۔ پہلا سبب ہم نے بیان کیا، موحد آدمی، توحید پر مرنے والا آدمی، توحید پر اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا آدمی، وہ ایسا آدمی ہے، وہ ایسا انسان ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے عمل میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کے لیے وہ کام کرتا ہو، اللہ کے لیے عبادتیں کرتا ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادتیں کرتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہو، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہو، تب جا کر اس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، لوگوں میں سخی اور فیاض کہلانے کے لیے، لوگوں میں یہ باور کرانے کے لیے، ارے وہ تو آدمی جو ہے وہ غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، غریبوں کا دکھ درد بانٹتا ہے، ارے لوگوں کی مدد کرتے پھرتا ہے، غریبوں میں صدقات و خیرات کرتا اپنے مال کو لٹاتا ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی صدقہ و خیرات غریبوں کی مدد کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، اس نے خالص دل للہیت کے خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی نماز اس نیت سے پڑھتا ہے تاکہ اس کو دنیا والے نمازی کہیں، اس کو دنیا والے عابد کہیں، اس کو دنیا والے متقی اور پرہیزگار کہیں، لوگوں میں اس کا چرچا ہو، ارے وہ تو بڑا نمازی ہے، ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، ہمیشہ نفل نمازیں تہجد کی پابندی کرتا ہے، نمازوں میں ہمیشہ آگے رہتا ہے، اس نیت سے اگر کوئی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے کہ اس کو عابد اور زاہد متقی پرہیزگار نمازی کہا جائے،
अल्लाह की कसम उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मतलब को नहीं समझा है। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार अपने दिल से नहीं किया, सिर्फ जुबान से किया है। अगर उसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होता तो लोगों को दिखलाने के लिए नमाज नहीं पढ़ता, वो लोगों को दिखलाने के लिए रोजा नहीं रखता, वो लोगों को बतलाने के लिए सदका और खैरात नहीं करता, वो लोगों में बड़ा और सखी और फैयाज बनने के लिए लोगों की मदद नहीं करता। जो लोग इखलास के साथ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, जो लोग अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं, वो कभी भी लोगों को दिखलाने के लिए, लोगों की निगाह में अच्छा बनने के लिए, लोगों की निगाह में मुत्तकी और नेक बनने के लिए कोई भी इबादत और नेकी नहीं करते। अगर हमारे दिल में ये मर्ज है, हमारे दिल में अगर ये बीमारी है, लोगों में अच्छा बनने की अगर हमारे अंदर तड़प है, तो आज ये बात नोट कर लो कि हमारे दिल में सही ईमान नहीं है, हमारे दिल में इखलास नहीं है, हमारे दिल में लिल्लाहियत नहीं है, हम ये अमल अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिल से नहीं पढ़ा, बल्कि सिर्फ जुबान से पढ़ा, जिस तरह मुनाफिकीन पढ़ते हैं, जिस तरह मुनाफिकीन पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल के दौर में वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे, सहाबा किराम के साथ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, सहाबा के साथ रोजा रखते थे, वो भी ज़कात दिया करते थे। लेकिन क्यों? ताकि अल्लाह के नबी और सहाबा किराम की निगाह से बच सकें, कहीं ये ना कह सकें कि ये लोग ज़कात नहीं देते, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, सजा हमको मिले। तो दिखलाने के लिए सिर्फ नेकियां करते थे। आज मुसलमानों की यही हालत है, आज मुसलमानों की यही हालत है। हम इस नियत से नमाज पढ़ने के लिए आते हैं कि कहीं लोग ये ना कहें कैसा मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ता, ये कैसा अहले हदीस है जो मस्जिद में हाजिरी नहीं देता, ये अपने आप को कहता है किताब सुन्नत के मानने वाले हैं, इसकी नमाजें दुरुस्त नहीं है, ये सदका नहीं करता, ये ज़कात नहीं देता, ये फला नेकियां नहीं करता, फला सुन्नत पर अमल नहीं करता। अगर इस नियत से कोई करता है कि दुनिया वाले मुझे बुरा ना कहें, दुनिया वाले मुझे अच्छा समझें, तो ये समझ लीजिए इखलास नहीं है उसके दिल के अंदर। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार दिल से नहीं किया है। और मेरे नबी उस आदमी के हक में सिफारिश करेंगे जिसने मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, जो अपने इखलास से दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, दिल से जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया होगा, उस आदमी के हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। हाज़रीन गिरामी, इसी तरीके से एक तीसरा सबब जिनके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफाअतें हैं वो कई किस्म की हैं। एक शिफाअते कुबरा है जो पूरी इंसानियत के लिए आप करेंगे। मैदान महशर में जो हौलनाकी का आलम होगा, अंबिया भी कहेंगे या रब्बी नफ्सी, ऐ रब मेरा क्या हाल होगा, मेरा क्या हाल होगा। जरा सोचिए, अंबिया जो उलुल आज़्म पैगंबर हैं, अल्लाह के सबसे चहेते सबसे महबूब बंदे हैं, वो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल अल्लाह के रास्ते में लगाया उन्होंने, 950 साल, 50 साल कम 1000 साल अल्लाह के रास्ते में दावत और तबलीग के लिए गुजारा। उनको मार खानी पड़ी, लोगों की अज़ियतें और जुल्म सहना पड़ा, लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन अल्लाह के रास्ते में वो लगे रहे 950 साल। वो भी कहेंगे या रब्बी नफ्सी, वो हौलनाकी होगी, वो ऐसा खौफनाक माहौल होगा कि वो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे या रब्बी नफ्सी, ऐ मेरे रब मेरा क्या आज हाल होगा, मेरा क्या अंजाम होगा। वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के रूहुल्लाह पैगंबर है, जिनको रूहुल्लाह कहा जाता है, वो ईसा भी कहेंगे या रब्बी नफ्सी, ऐ मेरे रब मेरा क्या हाल होगा। ये मूसा कलीमुल्लाह भी होंगे जिनसे अल्लाह ने बात की, अल्लाह ने बड़े बड़े मोअजिज़ात दिए, वो भी नबी कहेंगे अल्लाह मेरा क्या हाल होगा। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद होंगे जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के जिगरी खलील हैं, लेकिन ये भी कहेंगे या रब्बी नफ्सी, ऐ मेरे रब मेरा क्या हाल होगा। जरा सोचिए हम और आपका क्या हाल होगा, हमारा क्या है, हमारी क्या हैसियत है। कभी गौर किया, ये अंबिया भी वहां रब्बी नफ्सी का नारा लगाएंगे, ऐ मेरे रब मेरा क्या हाल होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। अल्लाह तू जैसा गुस्सा है आज, हमको तो नहीं लगता कि हम कामयाब हो सकते हैं। जरा हम अपने बारे में भी सोचें,
उस दिन की हौलनाकी के बारे में सोचें, जरा उस दिन की खौफनाकी के बारे में सोचें। अंबिया डरे होंगे, सुलहा, शुहदा, मुत्तकीन डरे होंगे, सहाबे कराम की हालत दुगनी होगी। लेकिन जरा सोचिए, हम और आप नमाजें भी नहीं पढ़ते, हम और आप नेकियां भी नहीं करते, हमारे पास नेकियों का ढेर नहीं। क्या उस दिन को सोचकर आपको डर नहीं लगता? क्या उस दिन की खौफनाकी को देखकर, सुनकर, पढ़कर आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं होता, अल्लाह के जलाल का खौफ नहीं पैदा होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त हमारे साथ क्या करेगा, उस दिन हमारे साथ क्या अंजाम होगा? क्यों आखिर हमको डर नहीं पैदा होता? क्यों हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं पैदा होता? क्यों हम अल्लाह से डर कर मस्जिद में नहीं आते? क्यों हम अल्लाह से डर कर नेकियां नहीं करते? क्यों हम अल्लाह का खौफ खाकर गुनाहों को नहीं छोड़ते? आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार अपने दिल से नहीं किया है। अगर दिल से हमने पढ़ा होता तो ये सारी नेकियां हम करते अल्लाह के लिए, ये सारे गुनाह से बचते हम अल्लाह के डर से। लेकिन हम दुनिया वालों के डर से चोरी नहीं करते, दुनिया वालों के डर से हम धोखा नहीं देते, दुनिया वालों के डर से हम बेहयाई और फहाशी नहीं करते। हम अल्लाह के डर से नहीं गुनाहों को छोड़ रहे हैं, दुनिया वालों के डर से। अरे वो कहेंगे क्या वो फिल्म देखने थिएटर में जाता है, लोगों की निगाह से बचने के लिए, लोगों के ताने से बचने के लिए हम फिल्म देखने नहीं जाते। कितने लोग हैं दुनिया वालों की निगाह से छुप छुप के रातों में थिएटर में जाकर फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते हैं अपने ये नौजवान? अभी 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन की बात है, ऐशा की नमाज के बाद मुझे एक नौजवान ने खबर दी कि शेख देख रहे हैं वहां ठंडे में मिलाकर, शराब ठंडे में मिलाकर लोग पी रहे हैं। वहां खड़े होकर 2-4 मुसलमान, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, एक नौजवान ने मुझे बतलाया। आखिर रात में वहां खड़े होकर क्यों शराब पी रहे हैं? दुनिया वालों की निगाह से बचने के लिए, दुनिया वालों की निगाह से बचने के लिए। अल्लाह का डर होता तो क्या वो शराब पीता? अल्लाह का डर होता तो क्या वो थिएटर में बैठकर फिल्म देखने जाता? अल्लाह का डर होता तो क्या वो सूदी कारोबार करता? अल्लाह का डर होता तो किसी मुसलमान पर जुल्म करता? अल्लाह का डर होता तो किसी मुसलमान का कोई मजाक उड़ाता? नहीं उड़ाता। लेकिन अल्लाह का डर नहीं है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं समझा है, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के माने व मफहूम को नहीं जाना है। इस बुनियाद पर ये सारी चीजें हमारी जात से वजूद पजीर हो रही हैं। मेरे भाइयों, तो तीसरी चीज आप समझ लें, तीसरी चीज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजना। खास तौर पर सुबह व शाम 10-10 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक है, हम पर वाजिब है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतने ताने सहे, इतनी मार खाई, इतने मजाक उड़ाए गए आपके, आपने क्यों बर्दाश्त किया? ताकि ये उम्मत ईमान ले आए, ताकि हम जैसे गुनहगार लोग अल्लाह की तरफ पलट जाएं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे जुल्म बर्दाश्त किए, ये ताने बर्दाश्त किए, ये मार खाना, आपका घर बार और अपने खानदान को छोड़ना, ये सारी बर्बरियत, ये सारे जुल्म क्यों हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? ताकि हम लोग ईमान ले आए, आपके उम्मती ईमान ले आए, अल्लाह का कलमा पढ़ें, मेरे नबी की इत्तिबा करें। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीथ असफा। आपकी तो ये हालत थी कि अपनी उम्मती को जहन्नम से बचाने के लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार थे कि मैं अपनी जान का नजराना पेश करता हूं अपने एक उम्मती के लिए, अगर वो ईमान नहीं लाता है। सोचिए मेरे नबी हमारे बारे में कितना सोचते हैं, हमारे नबी हमारे लिए कितना दर्दमंद है, हमारे नबी अपनी उम्मत के लिए कितने फिक्रमंद है कि मेरा नबी अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन हम हैं कि हम अपने नबी को हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है। हम हैं जो हमारी निगाहों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की कोई परवाह नहीं है। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को लाजिम पकड़ने वाले नहीं है। हम हैं कि हम गैरों की इत्तिबा कर लेते हैं, गैरों की इत्तिबा खुशी खुशी करते हैं, पीरों की, मुरीदों की, इमामों की, फला की। लेकिन मेरा नबी जो अपनी जान देने के लिए तैयार है हमारे लिए, हमारी कामयाबी के लिए,
जहन्नम से बचाने के लिए, जन्नत में ले जाने के लिए मेरा नबी अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन हम हैं कि अपने नबी को नबी मानकर राजी नहीं है। हम हैं कि अपने नबी की इत्तिबा करने पर हम अपने आप को आमादा और तैयार नहीं कर पाते हैं। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस या सफा। ए नबी मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी जान दे देंगे अगर ये लोग इस पर ईमान नहीं लाएंगे। ये मेरे नबी की हालत थी, मेरे नबी की ये हालत थी। आपका उम्मती आपको सजाएं दे रहा है, आपको तकलीफें पहुंचा रहा है, आपके सरे मुबारक को फोड़ दिया गया, आपके दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया। मेरा नबी अपनी उम्मत पर बद्दुआ नहीं करता, कहता अल्लाहुम्मा रहम उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर रहम फरमा। मेरे नबी अपने उम्मत के ताल्लुक से इतने दर्दमंद थे, इतने फिक्रमंद थे। आपको इतनी हमारी बनी पड़ी है, लेकिन हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कुछ कहना हो, करना हो, कहीं कुर्बानी देने की बात आए, अरे है ना दूसरे मुसलमान हैं, दूसरे लोग हैं, उलमा हैं, दुआत हैं, वो सब कर लेंगे। ये अवाम का काम थोड़ी ना है। ये हालत आ गई है आज। ये ताल्लुक है आपका नबी से, ये जज्बे मोहब्बत है नबी से आपका, ये लगाव है नबी से आपका। कहां गई मोहब्बत, कहां गया जज्बा, कहां गया नबी से लगाव? जरा सोचिए नबी के बारे में। ये वो नबी है कि हर नमाज के बाद, हर नमाज में अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करता है, और हम हैं कि अपने नबी के बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि हम नबी पर दरूद भेजें, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें। ये हमारा हक है, ये हमारे ऊपर वाजिब है। नबी ने सारे हुकूक को अदा कर दिया उम्मत के ताल्लुक से। नबी पर जो हक थे उम्मत के मुताल्लिक, नबी ने सारे हुकूक को अदा कर दिया। लेकिन हमारे ऊपर जो नबी के मुताल्लिक हुकूक हैं, हमने कहां तक अदा किए? बतलाइए। कितनी सुन्नतों की हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करते हैं? अब बतलाइए। एक एक मुसलमान, एक एक बंदा अपने आप के ताल्लुक से गौर करे कि वो नबी की कितनी सुन्नतों पर अमल कर रहा है, नबी की कितनी बातों को मान रहा है और कितनी बातों की नाफरमानी कर रहा है। हम खुद अपना अंदाजा ले लें, अपना अंदाजा करें, अपने गिरबान में झांक कर देखें कि नबी की कितनी परवाह है, नबी की सुन्नतों की कितनी परवाह है, कितनी कीमत है हमारी निगाह में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं, इन्न औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। और ये नोट कर लें, ये बात अपने दिल के निहा खानों में बिठा लें कि अगर आप नबी पर दरूद नहीं भेजेंगे तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। मेरे नबी ने, मेरे रब ने मेरे नबी को बड़ा बुलंद आपको मकाम मर्तबा अता किया है। आप जन्नतुल फिरदौस के सबसे आला मकाम पर होंगे। आप ही अंबिया के सरदार, मुरसलीन के इमाम है। आपके दरूद भेजने से मेरे नबी कि मकाम में ये मत सोचिए कि हम इजाफा कर रहे हैं, हम नबी पर एहसान कर रहे हैं, और अगर नहीं भेजते तो नबी को कोई नुकसान भी पहुंचने वाला नहीं। आप अपने आप को घाटे में डाल रहे हैं, आप नुकसान में अपने आप को डाल रहे हैं, आप रब को नाराज कर रहे हैं अगर आप नबी पर दरूद नहीं भेजते। आपने कहा सबसे ज्यादा करीब मेरे नजदीक जन्नत में वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजने वाला होगा। जो सबसे ज्यादा नबी पर दरूद भेजने वाला होगा वो सबसे करीब जन्नत के अंदर मेरे नबी के साथ होगा। हमने तो दुनिया में नहीं देखा अपने नबी को, हमने दुनिया के अंदर अपने नबी मुबारक का मुबारक चेहरा दीदार नहीं किया। लेकिन अगर हमारी ख्वाहिश है कि हम जन्नत के सबसे आला दर्जे में अपने नबी के साथ हो, अपने नबी के बगल में हो, तो नबी पर कसरत से दरूद भेजें, नबी पर कसरत से दरूद भेजें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप दरूद भेजेंगे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन जब आपके माँ बाप भी आपको पूछेंगे नहीं, आपके बच्चे आपको पूछेंगे नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं पूछेंगे, आपकी बीवी आपको वहां कोई मदद नहीं करेगी, उस वक्त मेरा नबी आपके सामने आएगा, मेरा नबी आपकी मदद करेगा। सारे अंबिया अपनी उम्मतों की परवाह नहीं, अपने जान की परवाह, अपने जात की परवाह करेंगे। सारे नबी जब कहेंगे या रब्बी नफ्सी, मेरा क्या हाल होगा, उस वक्त मेरा नबी कहेगा या रब्बी उम्मती, मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। इतनी फिक्र है दुनिया के अंदर भी आपने अपनी उम्मत की फिक्र की। कल क़यामत के दिन बड़े बड़े पैगंबर अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन मेरा नबी हमारे बारे में सोचेगा।
मेरा नबी हमारे बारे में सोचेगा, अपने रिश्तेदारों, खानदानों, अज़वाज मुतहरात के बारे में नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की फिक्र मेरा नबी रब के सामने भी करेगा। यह है नबी का दर्द अपनी उम्मतियों के मुताल्लिक। कहेगा या रब्बी उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। मेरा नबी आपको उस वक्त काम आएगा। ये नबी, ये मुबारक नबी कल क़यामत के दिन रब के सामने जहां कोई खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा, किसी के अंदर हिम्मत और ताकत नहीं होगी अल्लाह के सामने कोई खड़ा हो सके, कोई बात कर सके, उस वक्त मेरे नबी को इजाजत होगी। मेरा नबी अपनी उम्मतियों के बारे में सिफारिश करेगा। जो कल इस दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजेगा। कसरत से दरूद भेजने का मतलब ये हुआ कि वो आदमी अपने नबी से मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर जो आदमी जिस आदमी से ज्यादा मोहब्बत करता है, हमेशा उसकी जुबान पर उसी का जिक्र रहता है। जितनी मोहब्बत होती है आदमी की, उतना ही जिक्र, उतना ही उसका तस्करा हमेशा उसी को याद करता है। अगर नबी पर कोई कसरत से दरूद भेज रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो नबी से हकीकी मानों में मोहब्बत करता है। लेकिन दरूद भेजने का वही तरीका, वही वक्त, वही कैफियत, वही तरीका होना चाहिए जो नबी ने हमको सिखाया है। ये नहीं कि अजान से पहले, अजान के बाद, सुबह शाम हम माइक में रट लगाएं, ये नबी का तरीका नहीं। हमेशा आप नबी पर दरूद भेजें, उठते बैठते अपनी पूरी दुआ अगर नबी पर दरूद भेजने में सर्फ करते हैं तो आपकी दुआ भी कबूल होगी, अल्लाह मजीद आपको अता करेगा। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल कि अपनी दुआ में आधा हिस्सा मैं आप पर दरूद भेजूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर चाहो तो उससे ज्यादा भेजो। उन्होंने कहा क्या 3 हिस्सा आप पर दरूद भेजूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चाहो तो उससे ज्यादा। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अपनी पूरी दुआ में मैं सिर्फ आप पर दरूद भेजूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ, तुम्हारी मुरादें भी पूरी होंगी और उसके साथ साथ अल्लाह मजीद तुम्हें नवाजेगा। तो नबी पर दरूद भेजने का मतलब ये कि वो नबी से मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अम्मा अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मन सल्ला अलैया हीन युस्बिहु अशरन व हीन युमसी अशरन, जो बंदा मुझ पर सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त 10 मरतबा दरूद भेजता है, अदरकतहु शफाअती यौमिल क़ियामह, तो कल क़यामत के दिन मेरी शिफाअत उस आदमी को नसीब होगी। जो सुबह को नबी पर 10 मरतबा दरूद भेजता है, शाम को 10 मरतबा नबी पर दरूद भेजता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कल क़यामत के दिन उस आदमी को मेरी शिफाअत और मेरी सिफारिश हासिल होगी। क्या आप चाहते हैं? हम में से कौन नहीं चाहता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक में सिफारिश करें? क्या नबी का हम इतना भी छोटा हक अदा नहीं कर सकते? क्या हम अपने नबी के लिए सुबह शाम 5 मिनट का वक्त, 2 मिनट का वक्त नहीं दे सकते? 2 मिनट में आप 10 मरतबा सुबह में दरूद भेज सकते हैं, शाम में 10 मिनट 2 मिनट दें, आप 10 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरूद भेजें। आपको जहां उसके बदले में अल्लाह आप 1 मरतबा नबी पर दरूद भेजेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 रहमतें, 10 बरकतें आप पर नाजिल करेगा, 1 के बदले में 10। इतना बड़ा ऑफर दुनियावी, अगर कोई दुनियावी ऑफर मिल जाए 1 लाख के बदले 10 लाख, वो भी हलाल तरीके से, बगैर सूद के, बगैर किसी गुनाह और बगैर किसी जुल्म ज्यादती के, लाइन लग जाएगी। अभी लाइन लग जाएगी, झगड़े की, कत्लो क़िताल की नौबत आ जाएगी। 1 लाख दो, 10 लाख लो। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जिनसे बड़ा सच्चा इस दुनिया में कोई आया नहीं, कहा कि जिसने मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन 10-10 रहमतें उस पर नाजिल करेगा, 10-10 बरकतें नाजिल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ करेगा, उसके दर्जात को बुलंद करेगा। 1 मरतबा दरूद जो भेजता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक है। मेरे भाइयों सुन लो, मेरे नबी के इस हक को पूरा करो। 10 मरतबा सुबह को दरूद भेजो, 10 मरतबा शाम को दरूद भेजो। अगर इस दुनिया के अंदर आप ये अमल करेंगे तो कल क़यामत के दिन इस दुनिया में तो उसका सिला मिलेगा आपको, लेकिन कल क़यामत के दिन मेरा नबी आपके साथ होगा, मेरा नबी आपके साथ होगा, अल्लाह के सामने आपकी सिफारिश और शफाअत करेगा। हदीस के अंदर आता है, हाज़रीन गिरामी, हदीस के अंदर आता है, अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं इन्नल्लाह वक्कल ली क़बरन, गौर से सुने इस हदीस को, इन्नल्लाह वक्कल क़बरी मलकन, अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ते को मुकर्रर किया है। एक ऐसे फरिश्ते को
मेरी कब्र पर अल्लाह ने मुकर्रर किया, अताहुल्लाहु अस्माअल खलाइक, पूरी दुनिया के इंसानों का नाम अल्लाह ने उसको दे दिया है। पूरी दुनिया के इंसानों का नाम अल्लाह ने उस फरिश्ते को दे दिया है और अल्लाह ने उसका तारुफ भी करा दिया है। फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक जब भी मुझ पर कोई बंदा दरूद भेजेगा, इल्ला अबलगनी बिस्मिही वस्मि अबी, तो फरिश्ता उस आदमी के दरूद को मेरे पास पहुंचाएगा। कैसे? हादा फुलान इब्नु फुलान, ये फला इब्ने फुलान ने अल्लाह के रसूल आप पर दरूद भेजा है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी खुशनसीबी है, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। हमने नबी से बात नहीं की, नबी से देखा नहीं, नबी को देखा भी नहीं है हमने, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जिक्र, आपके वालिदैन का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाए तो नबी पर दरूद भेजो। वो जो फरिश्ता नबी के कब्र के पास है, अल्लाह ने उतनी ताकत उसके वसाइल को दिया है कि वो जब भी कोई बंदा दरूद भेजता है, वो फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, फला इब्ने फला ने आप पर दरूद भेजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जवाब देते हैं, आपका जवाब देते हैं। अल्लाह अकबर। खास तौर पर ये जुमा का दिन, ये जुमा का दिन, ये जुमा का दिन, मुबारक दिन जो है, ये हफ्तों के दिनों का जो सरदार है, आप इस दिन कसरत से मेरे नबी पर दरूद भेजें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खुसूसी तालीम दी है। आपने कहा, औस इब्न औस रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, मिन अफदल अय्यामिकुम अल जुमा, कि सबसे अफदल दिनों में से जुमा का दिन है। इसी दिन आदम को पैदा किया गया, इसी दिन आदम इंतकाल कर गए, इसी दिन सूर फूंका जाएगा, इसी दिन क़यामत होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़अक्तिरू अलैया अस्सलात फीह, लिहाजा जुमा के दिन मुझ पर तुम कसरत से ज्यादा दरूद भेजो। फ़इन्ना सलातकुम मारूदतुन अलैया, क्योंकि इस दिन जो दरूद भेजी जाती है वो मेरे पास पहुंचती है। इस दिन जो दरूद भेजता है मेरे नबी पर, वो नबी पर डायरेक्ट वो दरूद को पेश किया जाता है। मेरे भाइयों, ये जुमा का दिन है। जुमा के दिन जहां बहुत सारे अमाल हमको करने पड़ते हैं, उन्हीं में से एक अमल को लाजिम पकड़ लो कि सुबह से शाम तक नबी पर उठते बैठते हम दरूद पढ़ेंगे, नबी पर दरूद भेजेंगे। बड़ा मुबारक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्लामा बिनुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर दरूद के 100 से ज्यादा फजीलतें बयान की है। एक मर्तबा दरूद भेजता है तो 100 से ज्यादा फजीलतें उस आदमी को हासिल होती हैं। लिहाजा ये दो अमल आपके सामने मैंने जिक्र किया। पहला अमल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजें, खास तौर पर जुमा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन हमारे हक में सिफारिश और शिफाअत करेंगे, और इखलास और लिल्लाहियत हो कलमे में भी और हमारी नेकियों में भी। और तीसरा अमल, हालत तौहीद में अगर किसी का इंतकाल हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए भी सिफारिश करेंगे। बकिया बातें इंशाअल्लाह बाद के खुतबे में बताई जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत का मुस्तहिक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। इबादल्लाह क़ूमू इलस्सलाह।